So hi everyone, today we have a special guest on our channel. We have Sachin with us. So Sachin, would you like to introduce yourself once? Sure, Ashish. First of all, thankful to having me over on your channel. So, hi everyone. I am Sachin Tiwari, currently working as software developer specializing in backend with Razorpay. Around 2 years of experience, and I am 2023 pass out. And of course, not from very good college. I am from University of Mumbai. It is, I will not say tier three. It is, I think, tier four or some type of college. So that's more about my journey and about me. Uh-huh. Nice man, nice. So like he mentioned, he's come from a tier 3 college, worse than tier 3 college, and has cracked a good company like Razorpay. So we'll be getting to know his entire journey, his interview experience, preparation, and everything in between. So Sachin, would you like to start us off with your interview experience at Razorpay? Like what all did you face? What all happened? Sure, sure. So basically, here at Razorpay, we don't like focus much on DSA. It's like DSA round is there, but it's more like you can say a screening round, which is like online assessment and basic DS question round topics like binary search, the binary trees, वगैरह. Not so much advanced topic like DPA graph में. But the major thing which Razorpay focuses is on machine coding, or we call as low level design, also known as system design, low level design, machine, which is exactly what the Razorpay is expecting. We have a kind of, let's say, a very important round, which is a machine coding round. It's around 90 minutes to 2 hours of round. Basically, mera to it was around 2 hours. And so machine coding में basically generally I think most of the people will know it. And for people who don't know, what happens is interviewer will be coming to you, then आपका मतलब basic discussion होगा, they you will get to know each other. उसके बाद what happens generally is there is one topic. Let's say a very popular type of question. I cannot like disclose my question, but let's say a popular type of question है कुछ, which is more or less similar to my question also. कि you have to make a kind of bank system. ठीक है? उस system में you will be having 6 to 7 requirements, which interview will be specifying to you. लेट्स से कि आपको उन्होंने बोल दिया कि यू हैव टू मेक दिस बैंक मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें यू नीड टू कैरी लाइक एंटर योर यूजर्स, देन यूजर्स के करस्पॉन्डिंग उनका अमाउंट कितना है इन योर अकाउंट में, अकाउंट बैलेंस कितना है, आफ्टर एवरी विड्रॉल व्हाट्स द अमाउंट दैट्स गोइंग टू कैलकुलेटेड, हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट इट, देन कितना अगर किसी ने यूजर ने लोन लिया हुआ है, देन हाउ वी आर कैलकुलेटेड लोन अमाउंट. सो दिस इज लाइक अराउंड यू कैन से 6 to 7 रिक्वायरमेंट्स. या आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे तो यू विल गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट लाइक आस्क क्वेश्चंस ऑफ राउंड्स. तो व्हाट इज बेसिकली एक्सपेक्टेशन इन मशीन कोडिंग राउंड. तो क्या होता है कि व्हेन यू आर इन मशीन कोडिंग राउंड, बेसिकली और एक्सपेक्टेशन है कि यार 90 मिनट्स का अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यूअर इज एक्सपेक्टिंग मोर और लेस अ वर्किंग सोल्यूशन. ठीक है, कि जो रिक्वायरमेंट्स दी यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट एंड इट शुड बी वर्किंग एट द एंड ऑफ इंटरव्यू. सो बेसिकली जब मेरा इंटरव्यू हुआ था फॉर दिस मशीन कोडिंग, तो मेरे पास क्वेश्चन आया तो विच वाज हैविंग 7 to 8 रिक्वायरमेंट, तो हमको कोड आउट करना था. सो हाउ यू बेसिकली अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? तो उसमें क्या होता है, लेट्स से यू हैव द क्वेश्चन, यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली टू सोल्यूशन इवन इफ यू नो, इफ यू डोंट नो इट. मतलब यू नीड टू मेक इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड कि दिस इज अ पर्सन, अगर इसको आई विल कम अप विद अ वेक प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन डेली वर्किंग. अगर मैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ तो ही विल बी एबल टू गेट थ्रू द सॉल्यूशन. तो इंटरव्यूअर से डिस्कसिंग कि कैसा होगा तुम्हारा डीबी डिजाइन, what is going to think, what is going to be the relation between different functions, because what expectation is कि यार you will be writing clean code, working solution, optimized code. तो different functions उसमें होते हैं, then there is the main function calling those functions. So this is more or less what happens in machine coding or LLD round, which was my round second. Then the third round is the hiring manager round. So basically it happens with the manager of the team which you are going to be working for, या फिर जिस टीम की हायरिंग है. ठीक है, तो इट्स मोर और लेस अबाउट योर एक्सपीरियंस, देन देयर एक्सपेक्टेशंस, देन अब तक आपने क्या काम किया, रेजर पे में क्या काम होगा, देन व्हाट आर द डेली बिल्डिंग एक्टिविटीज दैट वी डू इन रेजर पे, वो आपको क्लियर करेंगे. देन दे विल बी also there is some design questions ki assume this is a problem statement, you have kind of others ka, what we say, concurrency, idempotency, how do we handle this. There will be around questions around this. Then थोड़े बहुत आपके let's say कि आपके रिज्यूमे में मेंशन है you have worked on Node.js, you have worked on Python, तो उसके अराउंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे. So that's it, this 3 rounds, that's what happens at Razorpay generally for most of the people. Nice man, nice. Okay, तो I understood basically like you said कि डिजाइन पे काफी अच्छा फोकस होता है. Like you said, machine Right. coding round. हाँ.
machine coding is like very important in Razorpay specifically. And जहाँ तक I know companies like Flipkart, Razorpay, and this type of companies, they working solution in like you have a machine coding round, which is a LLD kind of design round, right? हम्म, करेक्ट 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 एंड विल सर्कल बैक टू दिस ऑल्सो आपके प्रिपरेशन के साथ, बट थोड़ा डीएसए को आउट ऑफ द वे ले जाते हैं क्योंकि लाइक यू नो आपको भी काफी मैसेजेस आते होंगे, लोग आर वेरी वरीड अबाउट डीएसए क्योंकि लोग डीएसए में काफी स्ट्रगल करते हैं। तो रेजर पे का डीएसए में आप थोड़ा और डिटेल बता सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डिड यू फेस? DSA at Razorpay, I think if you are preparing DSA, तो एक कंपनी सोच के we should not prepare. Coming to Razorpay, ठीक है, coming to Razorpay, it was more of let's say कोई एक क्वेश्चन था बाइनरी सर्च रिलेटेड और एक क्वेश्चन था स्लाइडिंग विंडो रिलेटेड, ठीक है। My preparation was not generally confined to Razorpay when specifically coming to DSA part, ठीक है। तो DSA if anyone wants to prepare, so I think most of the us know कि काफी सारी शीट्स है मार्केट में, वो लगा मतलब शीट से ज़्यादा इफ आई बिलीव इफ यू आर इन कॉलेज देन आपके पास टाइम होता है। व्हेन यू आर वर्किंग देन यार टाइम निकाल पाना उतना ईज़ी नहीं है इन वर्किंग। येस यू नीड टू स्पेयर टाइम ऑन वीकेंड्स, ठीक है? तो फिर अगर आप कॉलेज में हो तो बेस्ट थिंग इज़ पार्टिसिपेट इन मैक्सिमम कॉन्टेस्ट, कोड फोर्स कॉन्टेस्ट दो, पर दो, लीड कोड पर दो। डज़न्ट मैटर कि आप बैठे हो, आप बस क्वेश्चन देख रहे हो, आपका क्वेश्चन हिल नहीं रहा, नहीं हो रहा सॉल्व, कोई बात नहीं, मुझसे भी नहीं होता था। व्हेन आई स्टार्टेड जब मैंने डीएसए स्टार्ट किया था मुझसे नहीं होते थे क्वेश्चन। मैं भी बैठता था, नहीं होता, नहीं समझ आता था। बट वो थिंक वो पार्ट है जब आपको गिव अप नहीं करना वहाँ पर। नहीं हो रहा क्वेश्चन कोई बात नहीं, देखते रहो, ट्राई करते रहो, फॉर्म सॉल्यूशन करो। जब आप पार्ट ले रहे हो, यू डोंट नो एनीथिंग इन कॉन्टेस्ट, तो आपकी रेटिंग क्या इफेक्ट हो जाएगी? जब रेटिंग ही नहीं है तो इफेक्ट क्या होगी? ठीक है? तो कोशिश करते रहो, सॉल्व करो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे। उसके बाद क्या करोगे कॉन्टेस्ट ओवर हो गया, ठीक है, ब्रेक लो आधे घंटे का, 1 घंटे का, घूम कर आओ, बैठो जगह पे, अब सॉल्व करो, देखो कि क्यों नहीं हुआ। मैक्सिमम टाइम यार कॉन्टेस्ट का हम पे प्रेशर होता है तो क्वेश्चन नहीं बनते। आफ्टर कॉन्टेस्ट आप देखोगे तो शायद वो क्वेश्चन 5-10 मिनट में बन जाए। नहीं बने तो देन एफिलिएट कोड पे हो आप या किसी भी कोड फोर्सेस पे हो तो देन देयर आर हिंट्स टू एवरी प्रॉब्लम। तो वो हिंट्स देखो, क्या है? फिर वो हिंट से सॉल्यूशन बिल्ड करो, उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। एट द एंड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं यार, जाओ डिस्कशन में जाओ, देखो कैसे किया है लोगों ने, फिर लिखो, ड्राई रन करो, देन उसको खुद इम्प्लीमेंट करो। डोंट कॉपी द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करो, देन आई थिंक यू विल बी एबल सॉल्व द क्वेश्चन। तो यार बेसिक स्ट्रेटजी होती है डीएसए के लिए। बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपने पहले डीएसए कर रखा है, यू डोंट लाइक स्विच के लिए कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो डीएसए के लिए देयर आर मेनी शीट्स। लाइक मैंने स्पेसिफिकली एसडी शीट लगाई थी स्टाइवर की, देन ब्लाइंड 75 इज अ गुड शीट। अपार्ट फ्रॉम दैट नीट कोड की भी शीट है। दिस आर शीट जो आप यूज टू प्रिपेयर इफ यू आर ओनली लाइक एक्सपीरियंस गाय हैविंग ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, तो स्विच के लिए देख रहा था। Correct, correct, correct. And you know, I could not have said it any better than you explained. I 100% agree with whatever you said, right? कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो बेस्ट चीज यही है कि लाइक यू सेड अगर आप बैठे ही हो ना बस प्रॉब्लम ही देख रहे हो, गिव कॉन्टेस्ट। लाइक ऐसा अगर आपने कर लिया ना कि रिलीजियसली और गिविंग एवरी कॉन्टेस्ट, वो अलग लेवल की लर्निंग होगी जिसको आप मैच ही नहीं कर सकते बाय डूइंग एनीथिंग एल्स, है ना? बिकॉज़ कि यार कॉन्टेस्ट ही वही है जो इंटरव्यू में होता है। यू हैव अ स्टिपुलेटेड टाइम, 45 मिनट 1 घंटे का इंटरव्यू है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ब्रूट फोर्स ऑप्टिमल तक जाना है, इम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। अगर इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इन कॉन्टेस्ट टाइप ऑफ सिनेरियो तो वो 45 मिनट में 2 क्वेश्चंस नहीं होने वाले आपसे। Hmm. Correct, correct, correct. Well, yeah, like that is how you should prepare DSA, right? Based on whether you're in college or your experience. All right. So, thoda now let's circle back to the design and the machine coding part of it because, like you said, कि and बहुत companies focus करती है, Razer पे हो गई, Cred हो गई, Flipkart हो गई, है ना? Freshers के लिए भी अब राइट, काफी important है। तो आपने कैसे prepare किया था machine coding LLD के लिए? ठीक है। तो बेसिकली मशीन कोडिंग के लिए फॉर कॉन्सेप्ट्स मैंने तो मतलब मैंने कोई स्पेसिफिकली कोई कोर्स नहीं लिया, बट यूट्यूब पे काफ़ी रिसोर्सेज़ आई गॉन थ्रू। जैसे सूडो कोड नाम का एक चैनल है, इफ यू सर्च तो आएगा, तो वहाँ से मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स किए। अपार्ट फ्रॉम दैट श्रेयांश जैन का कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग का चैनल, आई थिंक इट्स गोल्ड माइन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिस्टम डिज़ाइन। तो वो वहाँ से आप काफ़ी कॉन्सेप्ट्स कर सकते हो। काफ़ी श्रेयांश जैन के काफ़ी सारे लो लेवल के वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हो। इट विल बी प्रिपेयरिंग यू। बट अब मेन थिंग आती है कि डीएसए कर रहे हो आप तो आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। तो क्वेश्चन लगाओगे।
तो उसके लिए इफ यू गो ऑन गिटहब देयर इज वन रेपो व्हिच इज आशीष पीएस लो लेवल डिजाइन की एक बढ़िया रेपो है। उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, जावा वगैरह में सॉल्यूशन है। मतलब मैं तो बेसिकली सी प्लस प्लस में ही कोड करता था सिस्टम डिजाइन से में भी। तो मैंने खुद के सॉल्यूशंस डाले हैं, मैं आपको रेपो का लिंक भी दे दूंगा। तो उसमें मेरे सॉल्यूशन है तो जो प्रॉब्लम उसमें जो भी आशीष पीएस लो लेवल डिजाइन रेपो के अंदर जो क्वेश्चन थे उसके मैंने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसकी मैंने गिटहब पे अपनी पर्सनल रेपो बनाई, वहाँ पे सॉल्यूशंस डाले मैं। So that's how majorly I focused and worked on a low level design system। और ये बेसिकली यार मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा था, तो होता ऐसा था जब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार अब स्विच करना है, ग्रोथ देखनी है अपनी। तो मंडे टू फ्राइडे आफ्टर ऑफिस आवर्स दिन रात तक पढ़ते थे, 2 बजे तक पढ़ते थे कि स्लीप 5 घंटे 6 घंटे की नींद होती है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वीकेंड्स में आई हैव स्टॉप स्पेंडिंग, मतलब कुछ भी टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया था। आई सब बनता, मतलब आई यूज्ड टू गो टू माय ऑफिस जो सैटरडे संडे सिर्फ मैं होता था या कोई बंदा होता था, तो हम होते थे 2 जन 2-3 जन या मैं अकेला होता था। तो मैं ऑफिस जाता था, मैं पूरे दिन ऑफिस में बैठ के वहाँ पे मतलब मेरे पास मैं पीजी में रहता था तो मेरे पास पर्सनल मॉनिटर था नहीं। ऑफिस में मॉनिटर लगा हुआ था, उसमें अपना कंप्यूटर कनेक्ट करके फिर हम लोग वहाँ पे मतलब पूरे दिन 10-12 घंटे फिर सिर्फ हम सिस्टम डिज़ाइन ही कर रहे होते थे, कोड कर रहे होते हैं, डीएसए कर रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, मतलब कुछ भी कर रहे होते हैं, बस कर रहे होते हैं, ये तो फाइनल था। और जब आपको लगे कि ये 50-60% 70% अपनी प्रिपरेशन हो गई है सिस्टम डिज़ाइन, सो आई विल से यू शुड स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़, सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यूज़ दो। चाहे मॉक इंटरव्यूज़ दो या टॉपमेट में आजकल लोग सेशन लेते हैं, तो टॉपमेट पे कोई आपको तो वो आप ले लो। तो मॉक इंटरव्यूज़ दो, उससे आप समझ आएगा आपको कि मैं कहाँ गलत हूँ। बिकॉज़ कि आप तैयार हो जाओ और आप आज सोकर उठो और बोलो कि नहीं आज तो मैं ये कंपनी क्रैक कर लूँगा, सिस्टम डिज़ाइन तो मेरा प्रिपरेशन है। ठीक है? ऐसा नहीं होता। आप रिजेक्ट हो गए, मैं रिजेक्ट होता था, हर कोई रिजेक्ट होता है। प्रिपरेशन कर लो, आपको समझ तब आता है व्हेन यू गो इंटू योर बैटल, यू फाइट, मतलब बैटल में तलवारबाज़ी नहीं करनी, डू इंटरव्यू। वहाँ पे वेन्यू कि क्या हो रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको अप्रोच कैसे करनी है। क्योंकि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सिस्टम डिज़ाइन इट्स लाइक टू वे कन्वर्सेशन कि आप बता रहे हो कि मैं इस चीज़ को इससे मैप करूँगा, इस चीज़ को इससे मैप करूँगा, इतना डीबी डिज़ाइन ऐसा होगा, एंड यूज़र आउटपुट ऐसा होगा, ये फंक्शंस होंगे। तो दिस इज़ द पर्सन यू डिस्कस विथ योर इंटरव्यूअर। जब इंटरव्यूअर से डिस्कस करोगे देन ओनली देयर इज़ अ चांसेस यू विल किल दैट राउंड एंड मूव टू अदर राउंड। Hmm. Nice man, nice, amazing. तो this is very motivational to hear, you know, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, they do the opposite। वो जॉब में जाते हैं, पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं, मस्ती मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जब तक वो डेडिकेशन आप पुट नहीं करोगे ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड रिजल्ट, यू नो। वो हार्ड वर्क और डेडिकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो आई रियली होप कि whoever is watching, you know, gets motivated by the hard work that you had put into। I hope so। मतलब I think when you are looking for such, if you're looking for something good, तो you need to compromise something to get something, right? डेफिनेटली डेफिनेटली वही है, आपको सब कुछ करते हुए आप नहीं जा सकते टॉप पे, है ना, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, काफी कंपटीशन है ना। आजकल आप देखो बहुत जगह शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, शॉर्टलिस्ट हो जा रहे हैं तो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसी पे लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, राइट, क्योंकि आपने भी ये फील किया होगा, मेनी पीपल वुड बी मैसेजिंग यू कि वो लोग स्विच का ट्राई कर रहे हैं, जॉब लेने का ट्राई कर रहे हैं, एंड उनको तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। तो एनी सजेशन यूड लाइक टू गिव फॉर दीज पीपल? तो हाँ यार, मुझे मतलब इसके रिलेटेड काफ़ी मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं कि ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, रिज़्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। आई एम मैसेजिंग 100 पीपल्स तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो अगर मैं रेज़रपे की ही बात करूँ तो व्हाट हैपेंड विथ मी एट रेज़रपे। सो बेसिकली मैंने 25 से ज़्यादा कोल्ड ईमेल्स किए थे रेज़रपे में डिफरेंट डिफरेंट एचआर्स को टू गेट वन अपॉर्च्युनिटी। ठीक है? तो आई थिंक आई हैव मैसेज अराउंड ईमेल्ड अराउंड 10 डिफरेंट रिक्रूटर्स ऑफ रेज़रपे। और नॉट ओनली रेज़र पे, मतलब मेरा टाइम जब मैं स्विच का देख रहा था तो मेरा टाइम फिक्स था कि सुबह जो 10 से 11 की विंडो होगी, दैट टाइम आई विल सिट, गैदर रिक्रूटर्स की ईमेल आपको आजकल मतलब लिंक्डइन से ही मिल जाती है इफ यू वांट टू, राइट? अगर थोड़ा डिग करोगे तो आपको मिल जाएगी रिक्रूटर्स की ईमेल। तो वो ईमेल उठाओ, एक टेम्पलेट बनाओ ईमेल का कि दिस इज़ हू आई एम, आई हैव वर्क्ड ऑन दिस थिंग, दिस इज़ अचीवमेंट्स। ऐसा एक टेम्पलेट बनाओ, अपना रिज़्यूम बनाओ, रिज़्यूम मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे ओवरलीफ पे आप जाओ तो आपको अच्छे-अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, उससे टेम्पलेट एक स्ट्रॉन्ग रिज़्यूम बनाओ, जिसका एटीएस स्कोर अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा। अगर मैं आप रिक्रूटर हूँ, मैं इस बंदे का रिज़्यूम देख रहा हूँ, तो मैं देखकर बोलूँ कि यार ही डिज़र्व्स एन अपॉर्च्युनिटी, उतना अपना स्ट्रॉन्ग रिज़्यूम मतलब अपनी तरफ से बी रेडी 100% कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ, आई हैव डन दिस थिंग्स कि इसके बाद रिजेक्ट होऊँगा तो या लक इन्वॉल्व्ड हो जाएगा कि इसके बाद मैं रिजेक्ट हुआ या नसीब नहीं। बट पहले उस लेवल तक पहुँच जाओ,
अपना रिज्यूम बना लो, सब बना लो। आई यूज्ड टू लाइक कोल्ड डीएम्स में करता था डिफरेंट पर्सन्स ऑन लिंक्डइन, यार रिप्लाई आता था, मतलब आई एम नॉट सो स्पेशल कि मेरे को सब रिप्लाई कर देंगे। मैंने एक-एक कंपनी के लिए आई हैव लाइक मैसेज लाइक 60-70 पीपल्स। एक बंदा कोई होता था जो मतलब यू कैन से एंजल टू मी, एक बंदा होता था जो रिप्लाई करता था, जो रेफरल दे, जो रिक्रूटर को रिज्यूम भेज देता था। लेकिन वो एक बंदा आपको मिलेगा, उसके लिए आपको 60-70 मेल्स भेजने पड़ेंगे। देयर इज़ नो शॉर्टकट नहीं है। मतलब रिक्रूटर को कोल्ड ईमेल आपको करना पड़ेगा, रिक्रूटर को आपको रीच आउट करना पड़ेगा, लिंक्डइन पे आपको एक्टिव होना पड़ेगा। नाउ अगेन कि अब मुझे लोगों के आज मुझे मैसेज आते हैं, रेफरल्स के मैसेज आते हैं। तो आई थिंक कि ये सचिन है जिसने एक 60 लोगों को मैसेज किया था एक रिप्लाई के लिए। तो आई यूजुअली ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन, सबको आई ट्राई टू गिव बिकॉज़ दिस रीज़न आई थिंक अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि यार 70-80 बंदों को मैसेज करो, एक तो रिप्लाई करेगा, तो आई शुड बी दैट वन पर्सन राइट? ऐसा सोचने वाला किसी और कंपनी में विल बी दैट वन पर्सन जो आपको रेफरल दे देगा। एंड यू नेवर नो कि कब इंटरव्यू अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, एवरीथिंग फॉल्स इंटू द प्लेसेस, गॉड विल बी एट योर साइड, योर एफर्ट्स विल स्टार्ट पुट इंटू द राइट प्लेस और क्लियर हो जाएगा। बट ट्राई तो आपको ही करना है, रिजेक्शन आपको ही झेलना है। आपको ही रोज़ रिक्रूटर को सुबह उठो 10 से 11 का विंडो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट व्हेन मोस्ट ऑफ द रिक्रूट चेक देयर मेल्स कि यार ऑफिस आ रहे हैं कॉर्पोरेट में, मस्त ऑफिस आ रहे हैं, कॉफ़ी पीते हुए मेल अपना खोलेंगे। आपका मेल टॉप पे दिख जाएगा, उस समय तो नज़र जाएगी कि कौन है बंदा भाई, रोज़-रोज़ मेल कर परेशान कर रहा है, कौन है देखूँ तो। तो देखेंगे आप, तो माइट बी यू गेट लकी दैट टाइम। Hmm, nice man, nice. Very beautifully explained, you know. Like you said, वही है कि it's a numbers game यार. थोड़ा तो आपको होता है ना, बहुत लोग घोस्ट करेंगे, बहुत लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, बहुत लोग रिप्लाई करके फिर रेफरल नहीं देंगे, लेकिन इफ यू राइट, ट्राई हार्ड इनफ, एक वो एंजल लाइक यू सेड वो आपको मिल ही जाएगा, है ना? मिल जाएगा, मतलब इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जितना मैक्सिमम आप करोगे अपनी तरफ से, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि यू आर पुटिंग एफर्ट्स एंड यूनिवर्स विल नॉट वांट यू टू सक्सीड, राइट? अगर इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स देन कुछ तो होगा, कोई तो आएगा, कोई तो लाइफ में आपको चेंज लाने के लिए, दैट स्विच के लिए एक रेफरल मिल जाएगा। कोई बंदा होगा जो आपको रिज्यूम दे देगा एचआर को, एचआर शायद इंप्रेस हो जाए। लेकिन आपका रिज्यूम उतना स्ट्रांग होना चाहिए पहले कि लिखते कि रिज्यूम में कि हाँ, इस बंदे ने काम किया है, इस बंदे ने दे हैव पुट एफर्ट्स, इसकी रेटिंग्स हैं, इसने प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हुए हैं, इसने सिस्टम डिज़ाइन प्रिपेयर किया हुआ है, इसने करंट कंपनी में अच्छे सिस्टम्स बनाए हुए हैं। इफ योर रिज्यूम इज़ स्ट्रांग इनफ देन अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी, मेबी लेट मिले, मेबी 10 दिन, 15 दिन तक रिप्लाई ना आए, लेकिन फिर उसके बाद हो सकता है यू विल स्टार्ट गेटिंग मेनी रिप्लाई। जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि स्टार्ट में मुझे मैसेज नहीं आ रहा था, आई वाज़ ट्राइंग हार्ड इनफ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मैसेज किए जा रहे हैं, मेल किए जा रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बट देयर वाज़ अ टाइम कि आफ्टर दैट आई थिंक थ्रेशोल्ड होता है आपके रिजेक्शन का, मेहनत का, वो ब्रेक हो गया। उसके बाद आई वाज़ गेटिंग लॉट ऑफ रिप्लाइज़, मतलब ऐसा हो गया कि मैं रोज़-रोज़ इंटरव्यूज़ ही दे रहा हूँ। आई वाज़ नॉट लाइक एबल शेड्यूल, मतलब कि एक दिन में बंदा मैक्सिमम 2 ही इंटरव्यू दे सकता है, कितना ही दे दूँगा। तो वो सिनेरियो है कि इंटरव्यूज़ इतने मिल रहे हैं। तो आई थिंक लेकिन उसके पहले काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन हुई, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने घोस्ट किया, अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही थी। तो इट हैपेंस विद एवरीवन, ना सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे जैसे कई लोगों के साथ हुआ होगा। इफ यू आर इन कंपनीज़, सबके साथ होता है। तो इट इज़ यू आर नॉट स्पेशल, आई एम नॉट स्पेशल, नो वन इज़ स्पेशल। जस्ट अप्लाई, इट्स नंबर गेम, इट्स प्रोबेबिलिटी गेम, जितना ट्राई करोगे, यू विल बी ऑन द अदर साइड वेरी सून। Correct, correct. वही चीज like you said ना, if you keep working hard enough, universe will give it to you. I have not seen anyone जो 6 महीना, 1 साल, 2 साल मेहनत किए जा रहा है and he is not getting anything. That's just not possible. है ना? If you keep working hard enough, कहीं ना कहीं आपको opportunity और success का आपको एक ray मिल ही जाएगा, right? So that is, राइट, राइट। that is very amazing. All right. So I think we've covered almost everything, but still, on a final note, to all of the people who are watching this video, any final advice you'd like to give them? यार very true and kind of harsh advice I will like to give is कि यार ट्राई करो, मतलब विदाउट ट्राइंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई लाके थाली में आपको परोस के दे देगा। यार लाइफ में कभी तो आपको यू नीड टू पुट एफर्ट्स। आई एम स्टिल पुटिंग एफर्ट्स, आई नीड टू गो वेरी लॉन्ग इन लाइफ, यू नीड टू गो वेरी लॉन्ग इन लाइफ। आई थिंक एवरी व्यूअर दैट हु इज गोइंग टू वीडियो, आई थिंक एवरीवन वांट टू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, तो सक्सेस तब आती है व्हेन यू सैक्रिफाइस फॉर इट। ठीक है, यू नीड टू पुट एफर्ट्स, यू नीड टू लाइक कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। पर यार आप, आई थिंक वी आर इन वेरी यंग एज, 22, 23, 25 साल की उम्र है लोगों की। तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्ट्रगल, पुट इन दी एफर्ट्स, एफर्ट्स डालो, रिज्यूम अपना स्ट्रॉन्ग करो, वो पहले खुद रेडी हो जाओ। मतलब अगर मैं किसी से इंटरव्यू चांस मांग रहा हूँ,
अगर उसने दे दिया तो आस्क योरसेल्फ एम आई रेडी टू क्रैक इट? मतलब पहले रेडी हो जाओ, सिस्टम डिजाइन प्रिपेयर कर लो, डीएसए प्रिपेयर कर लो। Then when you are like 70-80% श्योर कि हाँ, अब इफ आई गेट into the opportunity, I will be able to crack it, ठीक है? तब you start applying, मॉक इंटरव्यूज देते रहो, कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा बैठो, लगाओ, नहीं बैठा जा रहा फिर भी बैठो, चैलेंज योरसेल्फ कि नहीं करना है। थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर जाना, आउटिंग्स कम करो। इफ यू आर रियली लाइक वेरी सीरियस अबाउट योर स्विच, यू आर गेटिंग योर फर्स्ट जॉब इन एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दोस्तों के साथ आउटिंग्स कम करो। थोड़ी क्लब लाइफ अपनी बंद करो, और मैथ में थोड़ी पढ़ाई करो। जब भी करो मतलब पढ़ाई करो, पुट इन द एफर्ट्स। तो आई थिंक व्हेन यू पुट इन द एफर्ट्स, ठीक है, यू कैन नॉट लूज। यूनिवर्स इज वेरी मच गिविंग। जब यार आप मेहनत कर लोगे तो सब कुछ रखा हुआ है आपके सामने। आपको पहले मतलब आपके लिए प्लेटर में कुछ नहीं आएगा। रिबन सजा हुआ होगा, रिबन लगाया हुआ होगा, ओपनिंग सेरेमनी भी होगी। बट पहले मेहनत कर लो, खुद को उतना तैयार कर लो कि नाउ आई एम रेडी टू कट द रिबन। तो आई थिंक समवन विल कम, यूनिवर्स विल गिव यू, यू विल गेट दैट, मतलब नाइफ कह लो या सीजर कह लो, टू कट दैट रिबन एंड टू एंड the place where you always wanted to be, and you will make like everyone and every person around you associated with you, like the person will be happy to say that this is the person I know. So that's the advice I कि गिफ्ट को बस ट्राई करो, लगे रहो, हो जाएगा। Amazing, man, amazing, very well said. All right, so I think that covers pretty much everything about Sachin's journey to cracking Razorpay and his wonderful advice. If any one of you want to connect one to one with him or need any specific help with any problem, I'll give his top mate in the description. You guys can connect with him for a one to one call there. I'll also give his LinkedIn in the description, so you guys can follow him and connect with him on there as well. So thanks a lot, Sachin, for coming on my channel and sharing your journey. I really hope this helps a lot of students. So yeah, thank you. थैंक थैंक यू आशीष। बाय।